Good morning, class. Yes, today we are going to learn about diary writing. This is your grammar chapter. Chapter number is 28. Okay, what is diary writing? Do you know about it? As I know, you have already read about it in your class 6. Yes, and I have taught you. Now in this class we will again revise what is diary writing. Okay, this is definition of diary writing. A diary entry is a short composition or record of the writer's personal feelings, thoughts, for activities during the course of a particular day. What is डायरी राइटिंग? डायरी एंट्री एक ऐसा शॉर्ट कंपोजिशन होता है जिसके अंदर जो रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड लिखे जाते हैं? जो राइटर होता है, लिखने वाला होता है, उसकी पर्सनल फीलिंग्स, ओके, उसकी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स, उसकी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे, मतलब पूरे दिन भर उसने क्या किया है या उसकी लाइफ में एनी मेमोरेबल डे है, यू कैन एड इट. ओके, दिस इज द डायरी राइटिंग. डायरी राइटिंग वॉट एवर, इफ you are celebrating your birthday and you have enjoyed a lot, so what will you do? You will just write down in your personal diary. I will suggest you should have a maintain a diary. Okay, you should have, and you always be habitual to write something, and you should record your personal feelings, thought, whatever you are feeling, and how did you spend your day. You can write in your diary. So the diary writing, you have to remember two things in whenever you will write a diary writing. First of all, it always written in first person. First person. First person means I. Okay, remember, जब भी डायरी राइटिंग करेंगे वो कौन से पर्सन में लिखी जाएगी? फर्स्ट पर्सन, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में लिख रहे हो. ओके, तो जहां पर भी आपको लगेगा तो वहां आप किसका यूज करेंगे? ओनली आई. हु इज राइटिंग डायरी? यू. तो जब हम खुद को इंडिकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई. तो व्हाट इज आई? फर्स्ट पर्सन. सेकंड थिंग, इट ऑलवेज रिटन इन पास्ट indefinite tense. What is past indefinite tense? Verb की second form. Okay, form, verb second form. So these two things you will always remember that whenever you will write diary. First person and past indefinite tense. Past indefinite tense, like you will write जैसे you are celebrated. I celebrated my birthday, like this. I celebrate, no, I celebrated. जो चीज आप कर चुके हो उसको ही तो डायरी राइटिंग में मेंशन करना है. ओके, तो वॉट एवर यू हैव फील्ड ऑलरेडी दैट यू विल राइट इन डायरी राइटिंग. तो हमेशा वो इंसिडेंट्स लिखते हैं जो हमने स्पेंड किया है, जो हमने फील किया है. लाइक you had gone for picnic from your school sites. Have you gone? Yes, that was a memorable day. So you can write down in your diary. How did you spend your day? Okay, what have you seen there and what have you done there? Everything you can write in your diary. Here is a sample content structure for diary writing to help guide entries clearly and personally. These are some structures. How did you write a diary? Don't close if it is opening again. Okay? Content of the diary writing. First of all, what will you remember? You will write date and time. Okay? First the date must be mentioned on the left hand. Left hand means this side. This is your left hand. Okay, and diary writing always written in on the left hand side. So left hand side at the top. Okay, in the next line the day must be mentioned
day mention, and these days we do not use any punctuation mark while writing the above. कोई भी punctuation mark use नहीं करेंगे whenever you will write date and day. For example, you can see here, like example 2 May. Okay, this is the day. This is the date of today, 2 May and 2025. This is Friday, and timing you can write whatever you want to write. You have to check the time. This is the wrong. Now PM, AM. Okay. So you have to write first of all date, the day and the time. When you are writing diary, what is the day today, timing and date. Okay. Now you have to leave the one line. Now, okay, after the time you have to leave one line left after it, and title is optional. If there is written a title, you can write, otherwise it is optional. If examiner said you have to write the title, then you will write, otherwise you have no need to write the title. Now greetings and opening. Greeting and opening means what will you address to your diary? Like, you may begin by leaving a line after the time, and then you may write dear diary. What will you address? Dear diary. Like जैसे आप लिखते हैं respected sir, dear friend, dear father. So what will you address to your diary? Dear diary. Okay. On the left hand side, this will also write on the left hand side like this, dear diary. Before you start the paragraph on the next line, when will you write this? You will write before the paragraph, you will start just above, you will write the dear diary. Okay. Now this moods and feelings. Moods and feelings means whatever you are feeling. And how is your mood on that day? You are sad, you are happy. Okay. If something bad happened with you, yeah, if you got shocked, yeah, you have got surprised, anything else, whatever you are feeling, that you can write here. Okay. Describe how you are feeling at the moment. कैसा feel कर रहे हो? Whenever you are writing diary, on that time, how you are feeling? कैसा feel कर रहे हो? किस चीज के बारे में आप डायरी में मेंशन कर रहे हो? That you should know. Okay. Example like I am feeling overwhelmed but hopeful today. Okay. जैसे मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये सब उसके बारे में लिख रहा है. Then summary of the day, कि कैसे कैसे आपने पूरा दिन बिताया, क्या देखा, कैसा गया, कौन आपसे मिला, एवरीथिंग. स्कूल का डे कैसा रहा, स्कूल के बाहर, घर पर क्या किया. Some people have good habit. They write in their diary their personal feeling, whatever they are doing in a whole day. They are just mentioning in the diary. पूरे दिन भर वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा किस में मेंशन करते हैं? डायरी में. कि आज टीचर्स ने कौन से सब्जेक्ट में कैसा पढ़ाया, आज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मस्ती की. बट लिसन, दिस इज योर इनफॉर्मल डायरी. जो आप अपना पर्सनल फीलिंग लिख रहे हैं, जहां आप अपनी होल डे के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर फीलिंग, दिस इज योर इनफॉर्मल. वहां आप कैसे भी लिख सकते हैं. बट इन एग्जाम यू कैन नॉट राइट इन इनफॉर्मल मैनर. वहां आपको फॉर्मल तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हमारा एग्जैक्ट डेट, टाइम, देन आफ्टर यू हैव टू एड्रेस डियर डायरी. फिर you have to read the question, whatever question in given exam, and you have to understand what is asking, yeah, what is saying in question, and they will give to you a topic. You write diary on that topic. कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, like birthday celebration, how do you celebrate your birthday, and कोई भी, जैसे मैं आज स्पाइडरमैन बना, देन मैं पूरे शहर की टूर पर निकला हूँ, या मैं कोई ट्रैवलिंग करने गया हूँ, या स्कूल की पिकनिक है, एनीथिंग एल्स दे कैन गिव. रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू हैव टू राइट इन योर डायरी. दिस इज इन फॉर्मल मैनर. वहां आपको टेंसेस पर्सन की फर्स्ट पर्सन में लिखनी है,
टेंसेस पास्ट टेंस यूज करना है. दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, व्हाट यू आर ओपिनियन और फीलिंग्स अबाउट व्हाट हैपेंड. ये आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या विचार है. एनी लेसन लर्नड और रियलाइजेशन, की कोई लेसन लर्न किया है, कोई चीज रियलाइजेशन हुई है. आपके पर्सनल गोल और प्लान्स, कभी कभी हम फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं कि हमें फ्यूचर में जाके क्या बनना है. व्हाट इज योर गोल्स, आपके एम क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं. व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं. एंड हाउ विल यू शेड्यूल योर टाइम टेबल फॉर लर्निंग, कि आप किस तरह से अपनी स्टडी का किस तरह से शेड्यूल बनाते हैं. तो वॉट एवर यू कैन राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन डायरी यू कैन राइट. ओके, नाउ वो एनी चेंजेस यू वांट टू मेक, अगर कोई चेंजेस करना है तो भी आप डायरी में मेंशन कर सकते हैं. क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपका स्टेटमेंट का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, फिर हम उसको क्लोज करते हैं कि भाई अब ये हमारा एंड हो गया, देन वी हैव टू क्लोज इट. सो रैप इट अप विद अ होपफुल नोट और समरी. नीचे एक ऐसी लाइन लिखनी है जो होपफुल नोट हो. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ऑल फॉर नाउ, होपिंग फॉर अ बेटर टुमारो. मतलब अब आज तक का तो ये जो था जैसा है ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा कल आने वाला है वो इससे ज्यादा अच्छा होगा. सपोज दैट यू आर राइटिंग अबाउट टुडे. होल डे में आपने क्या किया, कुछ चीजें हो सकती हैं यू फील बैड, आपको बुरी लगी, तो व्हाट विल यू थिंक कि जस्ट वॉट एवर वी इट हैपेंड इट्स गुड नाउ, बट जो मेरा आने वाला कल है दैट विल बी बेटर इट, वो ज्यादा अच्छा होगा. Now signature and your name. First of all you will write your name, then after signature. Signature is optional, you can do or not. Signature is also optional, but you have to write your name at the end of the diary. So one question is there, would you like a full example entry using this format? I have given one question and you have to write in this format your diary. The first question is that Imagine you are a little girl or boy. अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल, बॉय है तो बॉय. Living in a remote village in India. आप किसी रिमोट विलेज में रहते हैं इंडिया के. And the school is far from your village, but for your family it is important to see that you are educated. अब आप बता रहे हैं कि आपकी स्कूल जो है आपके घर से, जहां आप रहते हैं वहां से बहुत डिस्टेंस पर है, बहुत दूरी पर है, लेकिन क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको क्या देखना चाहते हैं, एजुकेटेड, अच्छा बनना हुआ, कि आपकी लाइफ सेट हो जाए, आप एक अच्छे से शिक्षित हो जाओ, एजुकेटेड हो जाओ. ओके, सो राइट अ डायरी एंट्री, तो उसके ऊपर आपको एक डायरी लिखनी है. एंड एक्सप्लेन योर डेली ऑर्डिल. ऑर्डिल्स मीन्स होता है आपकी हार्ड, मतलब कठिन परीक्षाएं, कि किस दौर से आप गुजरे हो. सपोज दैट यू आर जस्ट स्टडीइंग हियर and your house is very far away from here. तो जो आपको घर से स्कूल आने में जो जो ऑब्स्टेकल्स आई हैं, जो जो परेशानियां आई हैं, कैसे कैसे ऑर्डियल्स मींस कठिन परीक्षाएं आपको देनी पड़ी हैं, तो वो आप सब उसमें मेंशन करेंगे. Studying there the joy of learning that you are experienced in spite of various hardships and your plans for future. लेकिन इन सब ऑब्स्टेकल के आने के बाद भी आपने कैसे अपनी लर्निंग को एंजॉय किया है, वो सब कि फ्यूचर में आप किस तरह से बेटर अपने आप को करेंगे, फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान्स होने वाले हैं, वो सब आप इस डायरी में मेंशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज 2 May Friday and this is time. Okay, dear diary, you have to give one line space here, then after you have to write to dear. थैंक गॉड. सबसे पहले इसने भगवान को थैंक किया है क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने इतनी अच्छी स्कूल में डाला, उसके लिए थैंक्स. द डे हैज कम टू एन एंड. वो कह रहा है कि वो दिन आ गया है, अभी तक उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब या स्कूल से उसके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो वो दिन आ गया है. एंड आई कैन शेयर माई थॉट्स विद यू, कि मैं अब आपसे अपने आप को, अपने शेयर जो है, जो अपने जो थॉट्स है वो शेयर करना कर सकता हूँ. ठीक है, कि कैसे कैसे उसने वो वहां पर स्टडी की. यू नो हाउ फार द विलेज स्कूल इज फ्रॉम माई हाउस
It is an ordeal walking to and fro every day. What is here? You know, तुम जानते हो how far, कितनी दूर था विलेज. इस विलेज स्कूल इज फ्रॉम माई हाउस. जो स्कूल था वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूरी पर था. एंड इट इज एन ऑर्डिल, कि मेरे लिए तो वो एक कठिन परीक्षा था, कठिन समय था मेरे लिए. कि वॉकिंग टू एंड फ्रो एवरी डे. फ्रो मीन्स इधर उधर. फ्रो मीन्स क्या कर रहा था कि मेरे लिए वहां से चलकर आना बहुत एक ऐसा लग रहा था कोई मेरी कठिन परीक्षा ले रहा, कठिन दौर चल रहा था. इस तरह से रोज इधर उधर मैं भटक स्कूल आता था. द वेदर इज सो हॉट. हैट नहीं आएगा बेटा, हॉट. गर्मी का दिन था, समर डे था. वेदर कैसा था? गर्म. आई वे टू वॉक. आई वे टू नहीं, आई वे आएगा. I wait to walk in the shade of some trees and at times I feel that I would faint. कैसे रास्ते से चलता था? जहां जहां पर ट्रीज होते थे उनकी शेडो होती थी, शेड्स होती थी, छाया होती थी, उसमें से चलता था. पूरे टाइम चलते चलते उसको कैसा फील होता था कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा. फैंट क्या होता है? बेहोश होकर गिरना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंट? बेहोश होकर गिरना. बिकॉज अभी आप लोगों के साथ भी होता होगा, इतनी ज्यादा हॉट डे होता है, इतना गर्मी हो रही है, तो गर्मी की वजह से वो परेशान होकर क्या कहते हैं, पूरा डे मेरा ऐसा होता था कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा. व्हाट इज फैंट मीन्स बेहोश. माय फादर इज टू पुअर. उसके फादर कैसे थे? टू पुअर, बहुत गरीब. टू बाय अ बाइसिकल फॉर मी. ही इज अनेबल टू परचेज अ बाइसिकल फॉर हर. उसके फादर, हर फादर इज वेरी पुअर एंड ही इज अनेबल टू बाय अ बाइसिकल फॉर हर. उसके पिता थे जो थोड़े गरीब थे और वो उसके लिए साइकिल नहीं खरीद सकते थे. माई डिटर्मिनेशन टू स्टडी विल नॉट बी शेकन. लेकिन डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय. मतलब आपको इतनी परेशानियां आने के बाद भी आप एक निश्चित अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहते हो, डिटरमाइंड रहते हो, डिटर्मिनेशन बनाते हो. तो क्या कहते हैं? कोई मुझे हिला नहीं सकता था. शेकन मीन्स हिलाना. उसके गोल से कोई उसे उसको चेंज नहीं कर सकता था कि भाई इतनी परेशानियां आने के बाद भी वो अपनी स्टडी के लिए डिटरमाइंड रहती थी. आई लव टू स्टडी. उसे पढ़ना बहुत पसंद था. सो आई एम रेडी टू फेस दीज ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल्स होते हैं हर्डल्स, परेशानियां, डिफिकल्टीज. ओके, मैं तैयार हूं. आई एम रेडी टू फेस, सामना करने के लिए, दीज ऑब्स्टेकल, इन परेशानियों का. देयर आर नो फैंस और लाइट इन द स्कूल. स्कूल के अंदर ना लाइट थी ना फैंस थे. स्कूल भी कैसा था? जैसे लाइक गवर्नमेंट स्कूल में भी आजकल फैंस और लाइट होने लग गए, लेकिन इन विच स्कूल शी वॉज स्टडिंग देयर वॉज नो फैंस एंड लाइट. वहां ना कोई फैन था ना लाइट थी. देन आफ्टर शी वॉज स्टडिंग देयर, फिर भी वो वहां पर पढ़ाई कर रही थी. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट. अब इतनी गर्मी होने के बाद आप तो लाइट चल जाए, क्या थोड़ा सा अभी यहाँ पर लाइट चल जाए तो आप क्या कहेंगे? मैम प्लीज डोंट टीच अस. मैम मत पढ़ाओ ना. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट हियर. लाइट नहीं है, वी डोंट वांट टू स्टडी. हम पढ़ाई नहीं करना चाहते. यू विल से ना. आप 10 मिनट्स के लिए भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ाई नहीं कर सकते. बट शी वॉज स्टडिंग देयर. ऐसे में क्या होता है? गर्मी लग रही है एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल. तो क्या होता है? वो कहती थी ऐसी सिचुएशन में मेरा कॉन्सेंट्रेट करना भी क्या होता था? डिफिकल्ट होता था. पढ़ाई पे ध्यान लगाना क्या होता था? डिफिकल्ट होता था. बट आई हैव अ गोल. दिस विल नॉट कम. Goal to be educated, to get a good job and to pull my parents out of this poverty. लेकिन उसका लाइफ में गोल था, सेटिंग था, लक्ष्य था. क्या था? कि मैं पढ़ लिख कर इतना, मैं एक अच्छी जॉब लगे और मैं पुल मीन्स बाहर निकालना, मैं अपने पेरेंट्स को इस गरीबी से बाहर निकाल कर लेकर आऊंगी. पॉवर्टी होता है गरीबी. ठीक है, उसका लक्ष्य लाइफ में यही था कि उसने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के घर में इतनी गरीबी देखी है, पॉवर्टी देखी है, तो वो उसका एक लक्ष्य बन जाता ना कि यस, मैं इस सब चीजों से अपने पेरेंट्स को निकाल कर रहूंगी. तो उसका भी एक लाइफ में गोल था, एम था कि क्या था गोल?
कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब लूंगी और उसके बाद अपने पेरेंट्स को इस पॉवर्टी से पुल मीन्स निकाल लूंगी. ओके, आई हैव टू बी लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब मुझे एक स्पॉन्ज की तरह बन गई थी वो. आई हैव टू बी लाइक अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की तरह बनना है. व्हेन द टीचर्स टीच, जब टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उस सबको ऑब्जर्व कर लेना. स्पॉन्ज होता है ना ऑब्जर्व करना, पानी जैसे स्पॉन्ज वाला स्पॉन्ज होता है जिसपे पानी डालो तो ऑब्जर्व हो जाता है ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं. ऐसे टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो मैं क्या कर लूंगी, ऑब्जर्व कर लूंगी. हाउ मच दे नो एंड हाउ वेल दे एक्सप्लेन, जितना वो जानते हैं, जितने अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं. आई लव साइंस एंड मैथ्स द बेस्ट, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट थी साइंस एंड मैथ्स, उसे वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना बहुत पसंद था. एंड आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, उसने निश्चय किया था कितनी भी डिफिकल्टीज आए लाइफ में मैं हमेशा हार्ड वर्क करूंगी. एंड टू बिल्ड माई फ्यूचर एंड दैट ऑफ माई फैमिली, मैं अपना फ्यूचर तो बनाऊंगी साथ ही अपने फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर करूंगी. उसका नाम था क्या, रिधिमा. अंडरस्टूड? You can write in your own language this diary. It was not so difficult. Just you can imagine yourself in spite of Ridhima. Ridhima की जगह आप अपने आप को भी इमेजिन करके अपना जो गोल सेटिंग है, you can write your about yourself, but you have to write in a formal manner and you have to use past tense but here is where you needed and you have to use first person. Okay, you can change some lines and you can write in your own. So now you understood what is diary writing. It is not so difficult, you can gain full marks in this. So don't just cram it, you just understand it and try to write in your own language. Okay, thank you.